فاتحہ۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح من غلق، المغلق الحق بالحق، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور آج یہ سوچ کر درود بھیجیے گا کہ ہم سب زہرا کی کنیز ہیں اور آپ کا حق ہم پر ہماری جان سے بنتا ہے۔ یہ دھیان میں رکھتے ہوئے محبت کو پیش کرتے ہوئے درود بھیجے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ واجب ماتم دارین حسین، غریزان سیدہ، خاران گرامی قدر، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کو بناتا ہے، سنوارتا ہے اہل بیت کی صدقے۔ وہ اللہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور تمام درود و سلام ہیں اللہ کے بنائے ہوئے اس نوری گھرانے پر جس میں پہلا بھی محمد اور آخری بھی محمد ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اور میں سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ 9 دن مسلسل آتی رہی، اس فرش ادا پر ذکر حسین سنتی رہی، اور اس درس سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا ہوگا، کیونکہ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے انسان انسانیت کا سبق لے کر اٹھتا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں الہادی آرگنائزیشن اور خاص کر میری بہن خوریا جو بہت محنت کر رہی ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے، شبانہ آپا اور تمام لوگ جو اس آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی تمام حاجتوں کو بھر۔ صلوات بھیجے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ وہ عظیم خدا کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ چڑیا تھی، نہ چہک تھی، نہ مہک تھی، نہ رنگ تھا، نہ روپ تھا، نہ جوانی تھی، نہ کہانی تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک لامکان بنانے والا تھا اور 14 نوری پیکر بننے والی تھی۔ اس خدا نے انہیں بنا کر خود ہزاروں سال تک اپنی مسرت کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ انہیں وہ کردار دے کر دنیا میں بھیجا۔ ایک کردار مثال ہمارے لیے بن گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان بن کر جیے، تو اہل بیت کے در پر آ کر ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے انسانیت کا سبق دینے والے کسی گھرانے کو اللہ نے اگر سب کچھ دے کر بھیجا ہے تو وہ ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔
खुदा जब उसने जमीन को बिछाया तो जमीन नाच करती है, आवाज बुलंद होती है, मन होगा गालिब मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम द सुप्रीम, आई एम द बॉस, मेरे पास सारी कुव्वत आ गई है, सारी पावर आ गई है, मेरे जैसा कोई नहीं है। अल्लाह की आवाज आती है, तुम्हारे जैसे भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि आलम एक नहीं है, 18,000 आलम है, तुम्हारे जैसे और भी हो सकते हैं। नहीं हो सकता तो बस 14 सितारों जैसा कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ने जमीन के गुरूर को तोड़ दिया इस तरीके से कि पहले पानी को बनाया था, मथा था, पानी ने जो गुरूर किया था तो अल्लाह ने जमीन को बिछाकर उसके गुरूर को तोड़ा। जब जमीन ने नाश किया तो परवरदिगार आलम ने पहाड़ों के मेघों को गाड़ दिया और बता दिया नाज उठाता हूँ तो बस ज़हरा के घराने के उठाता हूँ, इसके अलावा मैं किसी के नाज उठाना पसंद नहीं करता। दुरूद भेजे मोहम्मद। पहाड़ नाज कर रहा है, मुझसे ऊंचा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा बुलंदी किसी की नहीं, अब मैं सबसे ज्यादा कुव्वत वाला हूँ। फिर अल्लाह की आवाज आती है, मुझे गुरूर पसंद नहीं है, मैं गुरूर को पसंद नहीं करता। परवरदिगार आलम ने ये जो पहाड़ है इसके गुरूर को तोड़ा, अल्लाह ने लोहे को नाजिल कर दिया, गुरूर को तोड़ दिया। यानी परवरदिगार ने बता दिया जब जब जो गुरूर करेगा अल्लाह उसके गुरूर को तोड़कर बताएगा कि तुम अला कुल्ले शैन कदीर नहीं हो, बल्कि मैं मोहम्मद का खुदा अला कुल्ले शैन कदीर हूँ। परवरदिगार आलम अहले बैत के सदक़े में सबके गुरूर को तोड़ता रहा। लोहे को गुरूर को तोड़ा, आग को बना दिया, आग ने गुरूर किया पानी को बना दिया, पानी ने गुरूर किया बादल को बना दिया, बादल ने गुरूर किया हवा को बना दिया, हवा ने गुरूर किया उस फरिश्ते को बना दिया जो हवा को उधर से उधर लेकर चलता है, उस फरिश्ते ने गुरूर किया परवरदिगार आलम ने मलकुल मौत को बना दिया। यानी बात वही आ गई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को मौत का जायका चखना है, लेकिन भी मौत और मौत में भी फर्क होता है। एक वो मौत जो जिल्लत की मौत हो और एक वो शहादत। ये करबला के 72 आज तक जिंदा किस लिए है कि गाजी अलमदार से लेकर हमारे 6 महीने के हैदर कर्रार ने वो किरदार दिखाया कि अब्बास के अलम ने दुनिया के गोशे गोशे में फैलाकर बता दिया अगर कोई इज्जत वाला घराना है तो वो हुसैन का घराना है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। इसलिए तो हम कहते हैं कि हर एक शख्स को दिल का करार देते हैं, जो मांगता है उसे बेशुमार देते हैं। हर एक शख्स को दिल का करार देते हैं, जो मांगता है उसे बेशुमार देते हैं। और उड़ान भरते हुए कह रहा था ये फितरुस, हुसैन बिगड़ा मुकद्दर सवार देते हैं। क्या कहने इस घराने के, हर किरदार अपने आप में मुकम्मल है। यही वजह है या अल्लाह इन किरदार के जरिए से हमारी शफाअत करता है। जन्नत के सरदार सबका ईमान है जितने भी यहाँ बैठे, जन्नत के सरदार हसन और हुसैन थे, हमारे आका। वो जिसे चाहे शफाअत दे दे वो करेंगे शफाअत। लेकिन परवरदिगार आलम ने जब इन्हें हमारे बीच वसीला बना दिया है तो हमसे अल्लाह क्या चाहता है, मैंने अपनी 2-3 तकरीरों में भी अर्ज किया था, हमसे अल्लाह चाहता है कि सिर्फ हम उसकी इबादत करें, लेकिन इबादत भी खुलूस के साथ होनी चाहिए। और इबादत महलों में रहकर तो नहीं होगी, क्योंकि महल अगर जुल्म और जबर से हासिल किया हुआ नहीं है तब सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत है। कालीनों पर किया हुआ सजदा गुरूर का भी हो सकता है, लेकिन खाक पर किया हुआ सजदा तो हुसैन पैकर में ढलकर ही किया जाता है, क्योंकि वो खाके शिफा जो करबला के जंगल में हुसैन गरीब मजलूम में करबला के खून से मुअत्तर होकर आज कायनात के गोशे गोशे में हर सजदे को मेराज दे रही है। वो किस लिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन सजदा 10 मुहर्रम को
ज़ैनब आलिया के भाई ने लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद और देखिए तादाद से फर्क नहीं पड़ता, सुनने वाले अच्छे होने चाहिए। तादाद तो आती रहेगी जाती रहेगी। हम यहाँ आज हैं, उस वक्त बाद हम नहीं होंगे। उसके बाद हमारी आने वाली नस्ल जो है आगे बढ़ाएगी। तो हमें अपना फरीज़ा अंजाम देना है कि हम कैसे इनका ज़िक्र सुनते हैं। और अब सलवात पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने बता दिया खाक पर सर रख दो अपने माबूद हकीकी के सामने। जब सजदे में सर रखोगे गुरूर निकल जाएगा, हसद निकल जाएगा, हम सरीकी किसी की कोशिश न करोगे। यही वजह है कि अल्लाह इबादत गुजार इंसान को पसंद करता है। बेशक वो हमसे सिर्फ इतना ही चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। इबादत करेंगे तो परवरदिगार कहता है जो मैं चाहता हूँ तुम करो, फिर जो तुम चाहोगे वो हम तुम्हें अता करेंगे। क्योंकि हमने 14 ऐसे बना है जो इनके दर पर आया मिस्कीन बनकर, असीर बनकर, गरीब बनकर, यतीम बनकर। इन किरदारों ने ऐसी मिसाल कायम की, इंसानियत हमेशा के लिए जिंदाबाद हो गई। जरूर पड़े मोहम्मद वाले। और यही वजह है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम अल्लाह की इबादत के लिए नियत करते हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर, फिर रुकू में जाते हैं, फिर सजदे में जाते हैं। यानी हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं इबादत के जरिए से। जब हम खड़े होते हैं तो हम क्या बताना चाहते हैं दुनिया वालों को कि हम उस परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जिसने हमें 2 टांगों वाली मखलूक पर फौकियत दी। 2 टांगे वाली मखलूक आपके सामने बहुत सारे जानवर मिल रहे हैं। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। फिर जब रुकू में जाते हैं तो हम परवरदिगार का शुक्र फिर अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम तूने हमें फौकियत दी 4 टांगों वाली मखलूक पर। वो भी आप देखते हैं। जब हम सजदे में जाते हैं तो हम फिर परवरदिगार का शुक्र का सजदा बजा लाकर बताते हैं कि परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है, तूने हमें उन पर फौकियत दी जिनकी टांगे भी नहीं है, जैसे मछली होती है पानी में। यानी अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, लेकिन इस इंसानियत के आलम में भी, इस तलातुम के समंदर में भी वाहिद 14 के घराने को इतना मुकम्मल बना के भेजा कि सूरत में भी अली, सीरत में भी अली, किरदार में भी अली, रफ्तार में भी अली, तमाम का किरदार अहले बैत का इतना मुकम्मल बनाकर भेजा कि इंसानियत के लिए मिसाल कामिल बनकर उभर आया। जरूर पढ़े मोहम्मद। और इल्म की बुनियाद परवरदिगार आलम ने इज्जत को करार दे दिया। इज्जत करो तो आपको इल्म मिलेगा, और जब आपको इल्म मिलेगा तो आपकी इज्जत में 4 चांद लगेंगे। अल्लाह किसी भी जाहिल के सामने, किसी भी आलिम की तौहीन नहीं होने देता। थोड़ा सा इल्म इंसान के पास आ जाता है, इंसान अकड़ने लगता है। आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने तो अपने यहाँ भी बहुत सी अपनी माँ बहनों को देखा है, किसी की बेटी अगर एक डॉक्टर बन जाए तो उसकी अम्मा कहती है मेरी बेटी इतनी मौतबर है। जब हॉस्पिटल में बैठती है बड़े से बड़े डॉक्टर खड़ा हो जाता है। यानी हम बोलते वक्त सोचते नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। इज्जत देने वाला अल्लाह है। जो तारीफ अपने मुंह से होगी भी हो, वो कोई तारीफ नहीं होती। तारीफ वो होती है जो पीछे की जाए। आज यही वजह है 1400 बरस बीत गए, करबला को 1400 बरस हो गए, लेकिन हर किरदार की तारीफ कुरान में भी है, तारीख में भी है। चाहने वाले गाजी का आलम थाम कर हाथ में बता रहे हैं, देखो सबसे इज्जतदार घराना हाशमी खानदान है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और अल्लाह ने तारीख के आईने में बताया। अगर हम तारीख खोल कर देखें तारीख इस्लाम, तो इल्म सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदों के पास। इंसान जब हजरत आदम के बाद नस्ल चली तो कामिल नहीं था, इंसान में कमियां थी।
جیسے جیسے علم بڑھا ویسے ویسے اس کے رہن میں، اس کے صحن میں، اس کی بات چیت میں سدھار آتا گیا، امپرومنٹ آتا گیا. یعنی جیسے جیسے علم بڑھا ویسے ویسے سلیقہ بنا. مثال کے طور پر دیکھیے لوہا ہوتا ہے، لوہے کا جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے. لوہار بھی ہے، انجینئر بھی ہے. لوہار کے پاس اس کا جتنا علم ہے اس کے حساب سے کلہاڑی بھی بنا دے گا، جو لوہے کی چیز ہوگی وہ بنا دے گا، وہ اپنے علم کے مطابق بنائے گا. لوہا پھر وہی ہے، لیکن انجینئر ہوگا اسی لوہے سے پلین بھی بنا دے گا. یعنی اللہ نے بتایا جیسے جیسے علم پر کمال آتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ آپ کو عزت دیتا جاتا ہے. اور کیا کہنے اہل بیت کے گھرانے کے، سمندر کا علم چاہیے تو حسین کے گھر سے لے لو، آسمان کا علم چاہیے تو حسین کے گھر سے لے لو، تہخانوں کا علم چاہیے تو حسین کے گھر سے لے لو، عالمین کا علم چاہیے تو زہرا کے گھر سے لے لو. تو پتہ کیا چلا، جس کے گھر میں پہلا بھی قرآن ہو تو پردے میں بیٹھا ہوا بھی قرآن ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. نعرے خیبری، نعرے نعرے صفدری، نعرے نعرے ابو ذری، نعرے آواز بلند نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ اللہ ہنر علم کے ساتھ دیتا ہے. ہمارے مولا کا فرمان ہے العلم و دین و توام، یعنی علم اور دین جڑوا بچوں کی طرح ہے. ایک کو دوسرے سے الگ کر دو گے تو آگ لگ جائے گی. ہم کہیں گے پروردگار عالم آپ کے کعبے کے کعبہ حلال مشکلات نے 1400 برس پہلے اپنی زبان مطہر سے یہ درس ہم سب کو دیا. یہ کہاں آ کر مثال قائم ہو جاتی ہے. آپ آج کے دور پر غور کیجیے گا. آپ فرماتے ہیں علم اور دین دو جڑوا بچوں کی طرح ہے، ایک کو الگ کر دو آگ لگ جائے گی. وہ کیسے؟ آپ کے پاس صرف اور صرف علم ہے، دین نہیں ہے، تبھی آپ پیچھے ہیں. اور آپ کے پاس صرف دین ہے، علم نہیں ہے، تبھی آپ پیچھے ہیں. آج کے دور کی مثال آپ لے لیجیے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے. بہت بڑا ملک ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں، بہت بڑے ملک ہیں، ان کے پاس علم تو ہے لیکن دین نہیں ہے. سمجھ رکھیے گا، لیکن دین نہیں ہے. پھر کوئی غازہ جیسی جگہ ہے، آپ کے پاس دین تو ہے علم نہیں ہے، تو کہیں پر بمباری ہے، کہیں پر گولہ باری ہے، تو کہیں پر ریسزم ہے. تو مولا نے فرما دیا علم بھی رکھو دین بھی رکھو. اگر علم اور دین کو ساتھ لے کر چلو گے، کہیں پر قمبر کی مثال دیکھو گے، کہیں پہ میسم تمار کی مثال دیکھو گے، تو کہیں پر غازی علمدار کی مثال دیکھو گے. درود ہے محمد والے محمد. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. جتنے بیٹھے ہیں سب کے چہروں سے داد چاہیے، زبان سے داد چاہیے، نہیں چاہیے مجھے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان لی ہے. اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. وہ کل ایمان، وہ کل دین، وہ صاحب ذوالفقار. ہم سب کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھا گئے. صلوات بھیج دو محمد. ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ آپ کے درس سے ملا. قرآن مجید کو آپ کھولیں گی، مجھے یاد نہیں میں نے یہاں پہ کبھی پڑھا ہو یا نہیں پڑھا، اس میں واقعہ موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلنے کے بعد کوہ طور پر جاتے ہیں وحی الہی سے دنیا کے حساب و کتاب کو سمجھنے کے لیے. آپ گھر سے نکلے، کیا دیکھا؟ بیویوں تو آج بھی سوچتے ہیں نا، ہم سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہم معتبر. ہم سب سے زیادہ زکاتیں دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں سب معتبر. اللہ کو پسند ہے عبادت،
لیکن بند آنکھوں والی عبادت خدا کو پسند نہیں ہے. بے شک اللہ کھلی آنکھوں والی عبادت پسند کرتا ہے. بے شک یہی وجہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے تو کیا دیکھا؟ ایک نوجوان کھڑا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی ہدایت والی کتاب تو قلب محمد پر نازل ہوئی، آیتیں بن کر صلوات بھیجے محمد والی. آپ آگے بڑھے. نوجوان نے کہا موسیٰ اللہ کے نبی کہاں جاتے ہو؟ کہا کوئی تو خدا سے بات کرنے کے لیے جاتا ہوں. کہا جا رہے ہو؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں میرا بھی ایک سوال، میری بھی ایک ڈیمانڈ رکھ دیجیے. کہا ہمارا تو کام ہی ہے اصلاح کرنا، آپ کے دل کی جو مراد ہے ہم پیش کر دیں گے. کہا دیکھو غور کیجیے گا، لفظ پر غور کیجیے گا کہ وہ شخص کہہ کیا رہا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی، عزت والے نبی، خدا سے جا کر کہنا ہوں تو بہت گنہگار، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کا مسلم نوش فرما. اللہ کے نبی کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا. آپ نے سنا، چل پڑے کوہ طور کی طرف. جانے کے بعد راستے میں ایک اور شخص ملا. ابھی پہنچے نہیں ہے، ایک اور شخص ہے، چہرے پر سجدے کا نشان ہے، داڑھی لمبی ہے، مصلی بچھا ہے، عبادت کر رہے ہیں. اور روک کر پوچھا سلام دعا ہوئی، کیا آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا کوئی طور پر اللہ سے کلام کرنا ہے. کہا آپ جا رہے ہو تو اللہ سے میری بھی ایک ڈیمانڈ، میری بھی خواہش ظاہر کر دیجیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہو اپنے دل کی حاجت. کہا کہ میں یہاں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتا ہوں، لیکن شہر دور ہے، مجھے اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی زندگی کے اثاثے کے لیے دور جانا پڑتا ہے. اگر تم اللہ سے میری سفارش کر دو، جتنے بھی ہیں سب میری طرف دیکھیے گا اور توجہ رکھیے گا. ہم یہیں پر عبادت کرتے ہیں، اللہ جنت سے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر، ہمیں آسانی ہو جائے گی. ہم جتنی دیر جاتے ہیں شہر میں لگا کر آتے ہیں، اتنی دیر میں ہم خدا کی اور عبادت کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی خوش کہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے. چلے گئے، جا کر اللہ سے دونوں کی بات رکھی. پروردگار عالم پہلا ملا تھا، اس نے کہا تھا ہوں بہت گنہگار، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خدا بندے قدوس جو کائنات کا مالک ہے، جو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ خدا مجھے مسلم جنت سے بھیج دے، میرا دل بہت ہے. اور پروردگار عالم ایک عبادت گزار بھی ملا تھا جو تیری عبادت میں ہر وقت مصروف ہے. وہ شہر جانے میں اس کو وقت لگتا ہے تو اس کی خواہش ہے کہ جنت سے اس کے لیے کھانا تو بھیج دے تو اس کا وقت بچ جائے گا. اب جیسی خاموشی اس وقت سنتے میں ہے، ویسی خاموشی نہیں رہنی چاہیے جب نتیجہ سامنے آئے. اگلا دن آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عزت والے نبی، صاحب شریعت، صاحب کتاب، گھر سے نکلے. پہلا والا نوجوان ملا جس نے کہا تھا ہوں تو بہت گنہگار. اس نے روک کر کہا شکریہ موسیٰ. کہا کس لیے؟ کہ اللہ نے جنت سے مرغ مسلم بھیج دیا، بہت لذیذ تھا. میرے جملے نہیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے جملے ہیں. کہا اللہ نے بھیجا، میں شکر گزار ہوں اس خدا کا، اس نے بھیجا، بہت لذیذ تھا. میرا دل نہیں بھرا، میں چاہتا ہوں مجھے پھر سے ملے. آج پھر میری خواہش کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینا. کہتے ہیں اس نے تو خود کہا تھا یہ گنہگار ہے، لیکن اللہ نے مہربان ہو کر بھیج دیا. مسکراتے وہ آگے بڑھ گیا. وہ جو مصلی کو بچھائے ہوئے تھا وہ بھی موجود ہے. صلوات پڑھیں گے. وہ بھی موجود ہے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فوراً لپک کر پاس آیا. کہا موسیٰ شاید آپ نے ہماری بات ٹھیک سے نہیں رکھی. کہا وہ کیوں؟ یہ آج بھی ہماری تو کھانی نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام چلالی نبی فوراً سوچنے لگے یہ کیسے اللہ کی کرامات ہے. آگے بڑھ گئے، جا کے پھر کہہ دیا پروردگار عالم پہلے والے نے کہا ہے. پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ تو اسے بھیج. دوسرے والے کو تو نے بھیجا نہیں تھا، اس نے پھر تیری بارگاہ میں التجا لگائی ہے کہ بھیج دے کھانا. دوسرا دن وہ پھر نکلے.
पहले वाला मिला हाथों को जोड़ कर कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मूसा, अल्लाह ने मुझे फिर खाना भेज दिया। क्या लजीज खाना था, फिर मेरा दिल चाह रहा है फिर मिल जाए। हम कहेंगे जन्नत का खाना जिसको मिल रहा उसका दिल तो चाहेगा कि दोबारा मिले। कहा फिर जाके इल्तिजा लगाइएगा परवरदिगार की बाहर काम है, मैं जानता हूँ वो रहमान भी है वो रहीम भी है। मूसा ने हैरत से देखा इसके लिए खाना आ जाए। फिर आगे बढ़े, वही नमाजी परहेजगार मुत्तकी सामने से नजर आए। कहा मूसा आपने शायद हमारी इल्तिजा को ठीक से पेश नहीं किया, हमारे लिए खाना फिर भी नहीं आया। जाके परवरदिगार की बारगाह में फिर कहा परवरदिगार आलम दूसरे वाले को फिर नहीं आया, पहले वाले को दो दिन बराबर आया। तू जाने, तेरी खुदाई जाने, तेरी मसलहत जाने। मेरा काम था पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। तीसरा दिन हुआ फिर निकले, फिर नौजवान ने कहा मूसा शुक्रिया, अल्लाह ने खाना भेज दिया, अब मेरा दिल है कि फिर कल मिले। जाके अल्लाह से फिर कहो। अब मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, ऐसे को खाना आता है जो इबादत गुजार है, जिसके माथे पर सज्जे के निशान है, उसे खाना नहीं आता। फिर आगे बड़े सोच रहे हैं शायद अल्लाह ने हाथ भेज दिया होगा। जब आगे बड़े क्या देखा, वही मुत्तकी इंसान सामने से नजर आया। बीबी हुलिये पर नहीं जाना चाहिए, किरदार पर जाना चाहिए, अमल पर जाना चाहिए। वही सामने आकर कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम आप हमारी बात को अल्लाह के सामने ठीक से पेश नहीं कर रहे हैं, खाना आया ही नहीं। अब जलाली नबी है, फौरन तूर की तरफ गए, कहते हैं जाकर ऐ परवरदिगार आलम मैं जानता हूँ तो अला कुल्ल शैइन कदीर है, तो रहमान भी है, तो रहीम भी है, तो सादिक भी है। परवरदिगार आलम लेकिन इतना तो बता दे, जलाली नबी है, सवाल कर रहे हैं। पहले वाला कहता है कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, तूने मुसलसल उसे दिन ब दिन खाना भेजा वो भी जन्नत से। दूसरा वाला जो है नमाज भी पढ़ता है, तेरी इबादत भी करता है, तूने उसे खाना नहीं भेजा, आवाज से खुद रहता है। अब इतनी जो मैंने मेहनत की है, तमहीद बांधी है सिर्फ इसी बात के लिए, आवाज खुद रहता है। ऐ मूसा जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, या तो मैं जानता हूँ या फिर मेरे 14 सितारे जानते हैं। या तो मैं जानता हूँ या मेरे 14 सितारे जानते हैं। कहा परवरदिगार बेशक जो तू जानता है वो मैं नहीं जानता। कहा मूसा कल जाना दोनों से कहना कि अल्लाह अब खाना नहीं भेजेगा। कहा परवरदिगार क्या रीजन बता दूं, कोई वजह भी तो बताऊं। कि जाकर उनसे कहना कि अल्लाह मसरूफ है, बिजी है, अब नहीं भेजेगा। और अल्लाह जो सुई होती है उसके नफ़ों में से ऊँटों के कतारों को निकाल रहा है। सुई छोटा सा होता है ना, जब हम थ्रेड डालते हैं धागा, उसमें से ऊँट कितना बड़ा होता है, उसकी कतारों को निकालना है, लाइन को, क्यों को निकालना है। जाकर कह देना। मूसा सारे रास्ते सोचते आ रहे, अल्लाह का फरमान है जैसा खुदा चाहेगा वैसा बंदे को करना है। घर गए, दूसरा दिन हुआ, जब जाने लगे दूर पर पहले वाला नौजवान आया जो कहता है हूँ तो बहुत गुनहगार। अब सामने से आया, कहता है मूसा मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था लेकिन कल खाना नहीं आया, आपने क्या मेरी बात को पेश नहीं किया था। मुस्कुराकर मूसा कहते हैं क्या नौजवान अब अल्लाह खाना भेजेगा भी नहीं। नौजवान ने कहा क्या हुआ, क्या वजूहात है कि अल्लाह मुझे खाना नहीं भेजेगा। कहा कि अल्लाह मसरूफ है, वो बिजी है। आगे वो कैसे कि अल्लाह जो सुई होती है उसके नगवे में से ऊँटों की कतारों को निकाल रहा है। कुरान में ऐसे ही है, ऊँटों की कतारों को निकाल रहा है। फौरन बढ़कर कहता है मूसा तवज्जो रखिएगा दीदियों, जितने भी मौजूद हैं सबकी जबान से उस खुदा की हम्द सना के लिए, उसकी रहमानियत के लिए, उसकी करीमियत के लिए, उसके इख्तिदार और मनसब के लिए जरूर बोलिएगा। उसने बढ़कर कहा मूसा क्या कह रहे हो कि अल्लाह मसरूफ है। फौरन बढ़कर कहता है मूसा हूँ तो गुनहगार, तवज्जो, हूँ तो गुनहगार लेकिन अक्ल का अंधा नहीं हूँ। हूँ तो गुनहगार लेकिन अक्ल का अंधा नहीं हूँ। वो खुदा जो जमीन को बिछा दे, जो आसमान को बना दे, जो 18
है 14 के सदक़े में। उसके लिए सुई के नगों से ऊँट का कतार को निकालना कौन सा मुश्किल बात है। अब जरा देखिएगा, ये है अल्लाह की करामात। ये सुनकर जवाब मूसा खामोश हो गए, आगे बढ़े। वही नमाजी परहेजगार जिसे हुलिये से समझ रहे थे, माथे पर जिसके सजदे का निशान था, वो दौड़ कर आया, कहा मूसा आपने मुसलसल हमारी इल्तिजा को अल्लाह की बारगाह में नहीं रखा, रोजाना खाना नहीं आया। वही मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फरमान को फिर सुना दिया कि अल्लाह खाना भेजेगा ही नहीं। जितनी खामोशी है उस खामोशी को तोड़िएगा जरूर। अब मैं अपना जुमला पेश करने जा रही हूँ। लुब्बा कहा क्या हुआ, अल्लाह क्यों नहीं भेजेगा? कहा कि अल्लाह जो है वो मसरूफ है, अब वो एक वक्त में इतने काम तो कर नहीं सकता। ये मैं अपनी तरफ से पेश कर रही हूँ। कहने का यही तो मकसद था आपका कि अल्लाह मसरूफ है, जब मसरूफ होगा तो दूसरे काम वो कर नहीं सकता। सुनने के बाद कहते हैं अच्छा हुआ क्या? कहा कि अल्लाह जो है वसूल के नगमों में से ऊँटों के खतारों को निकाल रहा है। तवज्जो रखिएगा जो मेरा मौजूद है। कहा अच्छा सुन्नी के नगमों में से ऊँटों के खतारों को निकाला है। फौरन मुसल्ले को बिछाया, सज्जों को सर में रख के कहता है या अल्लाह, अल्लाह की मुश्किल हल कर दे, या अल्लाह, अल्लाह की मुश्किल हल कर दे। आवाज इलाही आई, अब मूसा तुम्हारी समझ में आया, मैं ऐसों वैसों की इबादत में कबूल नहीं करता, इबादत कबूल करता हूँ तो सलीका मंदी की करता हूँ। इबादत भी कबूल करता हूँ तो सलीका मंदी की कबूल करता हूँ। यही वजह है कि क्या जुल्म हुआ इस्लाम की तब्दील के साथ, कत्ले शबीर हुआ नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर तो वो भी लगा रहे थे लेकिन किरदार में कमी थी, वो मफ़हूमी इबादत को समझ नहीं रहे थे, वो जान ही नहीं रहे थे कि सामने कौन हस्तियां हैं जो अल्लाह के तौहीद के अलम को बुलंद किए हुए हैं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझाने के लिए हमें किरदार को हमारे सामने पेश कर दिया कि अहले बैत का किरदार है, और परवरदिगार आलम ने मिसालें भी हमारे सामने ही दी। उसने बताया ये कुरान जो हाजा वाला कुरान है, अगर पहाड़ों पर आ जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, तो हम कहेंगे परवरदिगार आलम तो उन्हें हमें समझाने के लिए हमें बताया ये कुरान अगर पहाड़ों पर आ जाता तो रेजा रेजा हो जाता। अब घर में रखा रहता है, अलमारी में रहता है, लेकिन अलमारी तक तो टूटती नहीं है, तो ये बता दे परवरदिगार आलम फिर पहाड़ कैसे रेजा रेजा हो जाता। वीडियो गौर कीजिएगा, आवाज आएगी इस्लाम के दामन से कि अल्लाह ने तुम्हें समझाने के लिए, भारी बात है आराम से कहूंगी कि अल्लाह ने तुम्हें समझाने के लिए 13 रजब को एक दीवार में दरवाजा बनाकर बताया, देखो दुनिया में कुरान ऐसे नाजिल होता है, बताया। और क्या कहने उन हस्तियों के, और खासकर उस वजीउल्लाह के, उस कलीमुल्लाह के, जिनका चेहरा अल्लाह का चेहरा हो, जिनका हाथ अल्लाह का हाथ हो, जिनका सरापा नूर पैकर हो। आप आ गए 13 रजब को, और देखिए ये कानून है इंसानों का। एक स्टाफ वाले लोग होते हैं, स्टाफ वाले वो एक दूसरे के बाद अच्छे से समझते हैं। अब मेरी बहन मेरे सामने बैठी है, मर्सिया पढ़ती है, अगर किसी दूसरे मर्सिया खान को नहीं समझाना हो तो उसे समझाएंगे, इसलिए बंद पढ़ना इसलिए रोक देंगे। लेकिन अगर कोई मर्सिया नहीं पढ़ता हो तो उसकी समझ में नहीं आएगा, ये कहाँ से क्या कहें। एक टीचर दूसरी टीचर को समझाता है, ये पढ़ा देना, ये रोक लेना। एक वकील दूसरे वकील को बताता है ये इशू बनाए हैं, इन इशू पर बात करनी है, इस को ले लेना। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बताएगा ये दवा देती है, इस दवा को रोक लेना। यानी अपने लाइन के इंसान की बात दूसरे इंसान की समझ में आसानी से आती है। एक खतीब पढ़ने वाला हो तो वो दूसरे खतीब को जान सकता है, आम इंसान नहीं जान सकता। यही वजह है। अब समझ रही है मैंने मिसाल बहुत सादा करके आपके सामने पेश की। सलवात भेज दो वहां तवज्जो रखिएगा वीडियो। यानी एक स्टाफ की बात दूसरी के समझ में आ जाती है, बात कोई नहीं करेगा चाहे कोई भी हो, मेरी बहन नहीं, खामोशी रखिएगा। अब बात समझ में आ गई होगी उस दीवार की,
दीवार ने भी अपनी तारीख याद रख ली 13 रजब को। जब दीवार में दर खुला, फातिमा बिनते असद आगे बढ़ी। तो ये बहुत मशहूर बात है कि लोग कहेंगे कि आप इधर से चली जाती हो, उधर से चली जाती हो, क्या जरूरत थी कि सामने से गई, दीवार ने रास्ता छोड़ दिया। तो बीबी ने बढ़कर कहा होगा वो और भी जो इधर से भी गए वो उधर से भी गए, मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ, जहाँ मैं अपने कदम रख दूंगी वही रास्ता बन जाएगा। तो 13 रजब की दीवार को भी अपना वाकया याद है। जब किसी ने आकर अली मुर्तजा के सामने कहा था, मौला इख्तिदार आपके पास है, मनसब आपके पास है, आप जानशीन मोहम्मद हैं, आप वजीर मोहम्मद हैं, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो आपने कहा था बेशक इख्तिदार हमारे पास है, हम चाहें तो ये सामने की दीवार, हम चाहें तो ये सामने की दीवार सोने की हो जाए। देखिए एक होता है होना, एक होता है होना चाहिए। होने में होता हुआ नहीं हुआ, चाहिए में यह है कि होता ही है। जैसे हम कहते हैं इमरजेंसी, दूसरा होता है अर्जेंसी। इमरजेंसी है कि जल्दी है, पहुंचना है, अर्जेंसी ये है कि अभी के अभी पहुंचना है। तो मैं हमारे मौला ने कहा अगर मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की हो जाए। अभी इधर से हमारे मौला ने अपनी ज़बान मुबारक से ये जुमला अदा किया, मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की हो जाए। सामने से जिसने सवाल किया देखा कि दीवार में लर्जिश आना शुरू हुई, जितने भी बैठे हैं मेरे सामने सबकी तवज्जो चाहिए, दीवार में लर्जिश आना शुरू हुई। दीवार अपने आप कभी इधर से बोलती है, कभी उधर से बोलती है। क्या देखा कि सामने से दीवार सोने की हो गई। इस्लाम पर एहसान किया मेरे अली ने, इस्लाम पर एहसान किया मेरे अली ने, हम रुतबा ईमान किया मेरे अली ने, हम रुतबा ईमान किया मेरे अली ने। काबा तो मुसलमानों को देता रहा तहजीब, काबा तो मुसलमानों को देता रहा तहजीब, काबे को मुसलमान किया मेरे अली ने। नारे दरी, नारे खैबरी, नारे सलावत, कि दीवार का जर्रा जर्रा सोने में तब्दील हो गया। अब अली मुर्तजा अबू तालिब का बेटा अपनी मसनद को छोड़कर उठा। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक सलवात और पढ़ दो। अब हमारे मौला ने मसनद को छोड़ा। मसनद को छोड़ने के बाद इसको ना कस के लगाओ, कस के हमारे मौला ने मसनद को छोड़ा, छोड़कर हमारे मौला उठे। उठने के बाद हमारे मौला गए दीवार के पास और जाकर कहते हैं मैंने तो तुझसे कहा नहीं था। अब स्टाफ वाली बात याद है ना आपके ज़हन में, याद रखेगा। हमारे मौला ने बढ़कर कहा मैंने तो तुझसे कहा नहीं था कि तू सोने की हो जा, मैंने तो इसको बस बताया था कि अगर मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे अबू जरी, नारे खंबरी, बाबा से बुलंद नारे सलवात। कि मैंने तो तुझसे कहा नहीं था ये तो सोने की हो जा। तो फौरन उसने हाथ जोड़कर नहीं कहा होगा मौला जितने खामोश है वैसी ही आवाज आनी चाहिए। कहा मौला ये जो सामने खड़ा है आपके, इसके दिल में शक पैदा हुआ, यह सोच रहा था सामने की दीवार सोने की होगी या नहीं। मैंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगारे आलम
मुझे सोने का कर दे, मुझे सोने का कर दे। इधर मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने मुझे सोने का किया। तो मौला आप पूछ रहे हैं मैं सोने में क्यों तब्दील हो गई? मौला हमें भी अपनी तारीख याद है। 13 रजब वाली दीवार ने कायनात की सारी दीवारों से कहा था सबसे टकराना हैदर से न टकराना। बेटी नबी ने दी थी खानदान देख कर, चलती न ऐसो ऐसे से उठती न जुल्फ़िकार, अल्लाह ने भेज दी थी मगर हाथ देख कर। हैदरी कि मौला हमें भी अपनी तारीख याद है। 13 रजब वाली दीवार ने हम सबसे कहा था सबसे टकराना हैदर से न टकराना। आपने जैसे ही अपनी ज़बान मुताहर से जुमला अदा किया मैं सोने में तब्दील हो गई। मैंने इसको सोने में तब्दील होकर बताया जिसकी अदना सी गुलाम ऐसी इताअत करने वाली हो उसके चाहने वाले का आलम क्या होगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि चाहे तो कभी साथ को यस्तान बना दे, ऐसे नहीं बेदारी के साथ कि चाहे तो कभी साथ को यस्तान बना दे, पिता की कहीं बात को कुरान बना दे, कि चाहे तो कभी साथ को यस्तान बना दे, पिता की कहीं बात को कुरान बना दे, हसी को कभी साहिब आसान बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। यही वजह थी कि खैबर का मैदान था, नबी अकरम अकेले थे, सबके साथ थे, लेकिन जो भाई की मोहब्बत भाई को थी वो किसी और के साथ थी। खैबर के मैदान में 39 दिन का सूरज डूबने को था। वो जो थे इस्लाम के दुश्मन किले पर अपने यहाँ की मस्तूरात को खड़ा करके उनसे कह रहे थे गीत गाओ, बेइज्जती करो, सुम्मा माज़अल्लाह इनके नबी की। इन्होंने कहा था 40वें दिन इस्लाम की फतह होगी, इस्लाम का परचम लहराएगा। 39वें दिन का सूरज डूबने वाला है, इनका जो आता है वो वापस वैसे ही बैरन चला जाता है। इधर नबी अकरम के चेहरे पर मलाल और दुख नजर आया। उधर आपने अपनी मुसल्ला इबादत को बिछाने के लिए कहा सलमान, मौला सलमान ने हाथों को जोड़कर कहा जी मुकम्मल ईमान, जाइए हमारा मुसल्ला इबादत लेकर आइए। आपने मुसल्ला इबादत को बिछाया, सज्जे में सबको रखा, शुक्राने का सज्जा करने के बाद मेरे मौला ने हाथों को बुलंद किया और कहते परवरदिगार आलम अब उसको भेज दो जो साहिब जुल्फ़िकार है, अब उसको भेज दो जो मेरे जैसा है, मैं उसके जैसा हूँ। परवरदिगार अब उसको भेज दो जो मेरे बिस्तर पर तवज्जो, जो मेरे बिस्तर पर मेरी तरह ऐसे सो गया था, इनको पता भी न चला था मैं सो रहा हूँ या भाई सो रहा है। परवरदिगार उसको भेज जो ज़हरा का शौहर है, हसनैन का बाबा है। अब ये दुआ मांग कर नबी अकरम का चेहरा मुतमईन हो गया। जब हम किसी परेशानी में होते हैं और कोई हमें राहत वाली खबर मिलती है तो चेहरे पर मुसर्रत के आसार नजर आ जाते हैं। यही नबी अकरम सुकून के साथ अब आने वाला है। हम भी तो आज अपने घरों में इंतजार कर रहे हैं कि कोई अली पर्दे में बैठा है और आने वाला है। अब बैठे हुए हैं, सलमान इधर उधर देख रहे हैं, लोग भी इधर उधर देख रहे हैं कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। इधर से आमना के चांद खड़े हुए, बेटे चलो जल्दी निकल जाओ, सलवार पढ़ दो मोहम्मद। लग रही है बात को तेजी के साथ पेश करेंगे। अब इधर हमारे मौला आमने के चांद वो ताहा व यासीन वो बशीर व मुदस्सिर व नज़ीर वो कायनात के रहमतुल आलमीन हमारे मौला खड़े हुए, फौरन बढ़कर कहा परवरदिगार भेज। नादे अली पढ़ना शुरू की। उधर मिंबर में बैठे हुए अली ने कहा जाओ जल्दी जाओ खंबर, मेरी तलवार लेकर आओ, जल्दी जाओ मेरी तलवार लेकर आओ। इधर से खड़ा चलते हुए हमारे मौला पहुंचे।
पहुंचे। अब तक बात सहरा की तरफ करना चाहा, अंदर से फौरन जुल्फकार को लेकर बीबी फिजा हाजिर हुई, जुल्फकार को लेकर बीबी फिजा हाजिर हुई। फौरन बढ़कर कहते हैं, बीबी अभी तो मैंने आज से जुल्फकार लाने को भी नहीं कहा था। फौरन बीबी ने बढ़कर कहा, जब तूने वहां से कदम निकाला था मौला के हुक्म पर। अब आपने अगली बात नहीं कहूंगी जब तक आप सब सुनने के लिए बेकार ना हो। जरूर करें मोहम्मद वाले। जब तूने मेरे भाई, जब आपने मेरे भाई कदम निकाला था मौला के हुक्म पर, जाओ जुल्फकार लेकर आओ। इधर बीबी ने कहा था, जोरदार बात है, फिर जोर लगा कर उधर आपने कदम निकाला, जुल्फकार लेकर आओ। मौला ने कहा जुल्फकार लेकर के बीबी ने कहा, अम्मा फिजा अभी आने वाले हैं, जुल्फकार लेकर आइए। अब पता चला बाहर के गुलाम और होते हैं, बीबी की कनीज और होती है। इधर हमारे मौला दोस्त पर सवार होकर, अब कोई और भी है जो दिल के पैरों को पकड़ कर पहुंच रहा है खैबर के मैदान में। लोग इधर देखते हैं, लोग उधर देखते हैं, लेकिन मौला सलमान है जो आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। तो मैं कहूंगी वो कैसे आसमानों में ना देखे, जो शख्सियत ही आसमान वाली हो, जो शख्सियत ही आसमान वाली हो, उसका इंतजार हुए जमीन पर नहीं किया जाता, आसमान की तरफ देखा जाता है। अब क्या देखा कि एक जलाली पैकर आसमान से चलता हुआ आकर मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में कहता है, ऐ मेरे भाई बताइए क्या हुक्म है, किसका सर लेकर आना है, क्या करना है। और मोहम्मद ने कहा है, मेरे भाई ये है खैबर, खैबर को उखाड़ना है। फौरन सहरा के शहर ने कहा, मैं आपके साथ खैबर आपके साथ। हमारे मौला ने कहा, इधर से अलम को लेकर अली मुर्तजा चले। मैंने बात को समेट लिया, गर्मी बहुत है, लेकिन ये वाली गर्मी जन्नत की ठंडक में तब्दील हो जाए, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है हमारे लिए। इधर से अली मुर्तजा खच्चर पर सवार होकर अलमबरदार बनकर चले। वो सारी अपोजिशन पार्टी पर बैठ गई, नजूमी में बुला रखे हैं कि देखो जो आता था वो भाग जाता था, जो आता था वो भाग जाता था। अब जरा देख कर बताओ, सितारों का हिसाब लगा कर बताओ। आजकल हम जाते हैं ना पामिस्ट के पास, हाथों की लकीरों को दिखाते हैं, बहुत से लोग तो हमारे फाइल भी खुलवाते हैं, यानी हम इन चीजों पर यकीन करते हैं कहीं कहीं। अब उनको भी यकीन दो, पासे खवा रहे थे, देख रहे थे, अब कहा ने पासे फेंको, देखो पासों को फेंका। सारे नजूमियों ने एक साथ बढ़कर कहा, खबरदार होशियार, तवज्जो, खबरदार होशियार, अब आने वाला कोई आम इंसान नहीं है, आपकी तो सवारी भी आम नहीं है। दूसरे आते थे घोड़ों पर, आप तो खच्चर पर आए हैं, सवारी को मुड़ते मुड़ते भी टाइम लग जाएगा। यानी ये भागने वाले नहीं है, ये भगाने वाले हैं। आपको ये भागने वाले नहीं है, ये भगाने वालों में से है। तासुरात बदले। अच्छा क्या बात करते हो। इधर हमारे मौला तशरीफ लेकर आए, हाथ में अलम है। हमारे मौला ने बढ़कर, अब देखिए जुमला कह दिया, दाद ना मिले तो मुझे अफसोस हो जाएगा। मौला ने अलम को थामा, सामने पत्थर मौजूद है, अलम को लिया, पत्थर में गाड़ दिया, पत्थर में अलम को गाड़ दिया। अब उधर से मरहब के अंदर के चेहरे के तासुरात बदल गए। ये कैसे हो गया? आम इंसान तो जमीन में भी अलम को जल्दी से नहीं गाड़ सकता, इन्होंने पत्थर में अलम को गाड़ दिया। शैतान ने फौरन हमला किया। इनका कमाल नहीं है, हर 500 साल बाद एक सुहेल सितारा वो बुर्ज में दाखिल होता है, उस वक्त पत्थर भी मुआम हो जाता है। ये वो लम्हा था जब पत्थर को में आलम को गाड़ दिया था। अली मुर्तजा अल्लाह की इज्जत नीचे खड़े हुए सुन रहे थे। आप कहते हैं अच्छा ये हमारा कमाल नहीं है, ये सुहेल सितारे का कमाल है, तो आज आपको हम
अबू तालिब के बेटे के कमालात तो जौहर दिखाते हैं। समझ रखेगा, पूरी मजलिस में मैंने नहीं कहा कि आप बोले, लेकिन आप जरूर बोलिएगा। अली मुर्तजा फौरन दौड़कर आगे गए, अलम को उठाया, फिर दौड़कर पीछे आए, तवज्जो, फिर आगे गए, अलम को काट दिया, फिर पीछे दौड़े, फिर आगे बढ़े, अलम को उखाड़ा, फिर दौड़ कर गए, अलम को गाड़ दिया, फिर पीछे आए, फिर आगे बढ़े, अलम को उखाड़ा, फिर गाड़ दिया, फिर पीछे गए, फिर आगे बढ़े, अलम को लिया, गाड़ दिया, फिर कहते अब हिसाब लगाओ। नजूमियन उमर कैमर, अब तुम भी जाओ अंदर, तुम भी जाओ। फौरन नीचे आए, पीछे से आवाज आई, पार्टी छोड़कर जा रहे हो, तन्हा करके जा रहे हो, क्यों साथ छोड़ते हो? तो हम कहेंगे जो अली जैसे दर को छोड़ देता है उसका दुनिया में भी कोई नहीं रहता, उसका आखिरत में भी कोई नहीं रहता। छोड़कर अली मुर्तजा के कदमों में आकर गिर गए, कहते हैं मौला अब समझ गए आप ही मजरुल अजायब हैं, आप ही हाजत रवा है, आप ही कौनो मका है। पर हमने कहा जा तो रहे हो छोड़कर, इतना तो बताओ ऐसा हुआ क्या है? कहा तुझे नहीं पता, अक्ल का अंधा है, किस्मत का खोटा है, तू जहन्नुमी है, तेरी समझ में बात नहीं आ रही है। जब ये तवज्जो रखिएगा बीबियों, जब ये अपना यदुल्लाही हाथ उठा रहे थे, जब इन्होंने जैसे ही अलम को उखाड़ा, हमने क्या हिसाब लगाया, सुहेल सितारा बुर्ज में दाखिल हुआ, जब इन्होंने गाड़ा फिर बाहर आया, जैसे इन्होंने गाड़ दिया फिर अंदर गया, फिर उखाड़ा फिर बाहर आया, हमें पता चल गया, इसीलिए तो इनकी माँ ने इनका नाम हैदर रखा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि लड़खड़ाई जो जुबान नुक्ते चली याद आया, कोई मुश्किल जो पड़ी हक वली याद आया, और जिंदगी भर बखन बखन कह के मुकरना सीखा, मौत जब सामने आई तो अली याद आया। यही वजह है जो आज पर्दे ग़ैबत में बैठे हुए उनके दबाने के आसार होंगे तो दुनिया से हवा साफ हो जाएगी। कत्ल गारत होगा, इतना होगा ये समझ में भी नहीं आएगा, लोग परेशान होंगे, अचानक की मौतें होंगी, जवान मौतें हो जाएंगी, लोग लाइलाज मर्ज में मुब्तला होकर मरेंगे, अपने बेटों को, जवान बेटों को माए खो देंगी। ये फिक्र का मकाम है, जो बाहर बैठ के मुस्कुराकर सुननी है वो जरा फिक्र और गौर भी कीजिएगा। मैंने कभी किसी को टोका नहीं और पीछे मुड़ के कोई ना देखे ताकि उनको महसूस ना हो, मैंने किसके लिए कहा। ये गौर फिक्र का मकाम है, जब वो आएंगे न मक्कारी चलेगी ना यारी चलेगी तो हुसैन से मोहब्बत चलेगी, क्योंकि उनका वजूद 14 के पैकर में ढला हुआ है, जिनके लिए दरूद तूसी में तूसी साहब लिखते हैं कि आपका वजूद ऐसा है कि आपके वजूद मसूद की वजह से कायनात थमी हुई है। क्या आपका वजूद क्या है? आखिरी मेरी बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हमारे वक्त के इमाम के लिए पेश कीजिएगा कि आपकी हस्ती ऐसी है कि अली का जलवा आप में है, हुसैन का कमाल आप में है, मोहम्मद का जलाल आप में है। क्या वो है कि अल्लज़ी साहिबे दावत नबविया वल सौलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया वल शुजाअत हुसैनिया वल हिल्म हसनिया वल इबादत सज्जादिया वल जूद तक़विया वल हुज्जत रज़विया वल नकामत नक़विया वल ग़ैबत अस्करिया वल हैबत अस्करिया वल ग़ैबत इलाहिया, कि जिनकी दावत नबी की तरह, जिनकी शुजाअत अली की तरह, जिनकी इस्मत फातिमा की तरह, जिनका हिल्म हसन की तरह, जिनकी शुजाअत हुसैन की तरह, जिनके सद्दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह। जब वो आएंगे, आज की तकरीर का अपनी जुमला है मेरी, जब वो आएंगे तो लोग कहेंगे मौला ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, आप भी हैं, अब हमें ये बताइए कि हम जनाब ईसा की बात माने या आपकी बात माने। होंगे कुछ लोग ऐसे भी, वो तो शियाने हैदर करार होंगे कि मौला आपके दीदार का इंतजार करते करते ये आंखें उम्मीद में लिए हुए आज तक हम जिंदा है। तो मौला फरमाएंगे, आखिरी जुमला है, जितनी माए बहने यहाँ मौजूद है सब से मैं दाद की मुंतज़िर हो। हमारे वाला फरमाएंगे सुनो ये कौन है और हम कौन हैं? हम वो है
जिसके आंगन में कुरान उतरा है। हम वो हैं जिनके घर में अहमद मुख्तार है, जिसके घर में साहिब जुल्फ़िकार है, जिसके घर में गाजी अलमदार है। तो हमारे मौला कहेंगे देखो ये कौन है, हम कौन है। अब सब सुनने पर आमादा है तो मैं बात पढ़ूं, आमादा हो तो दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कौन है? हमारे मौला कहेंगे देखो ये ईसा है, मरियम के बेटे। उनकी तरफ ना देखिए, मेरी तरफ देखते हैं। मौला फरमाएंगे देखो आपके सारे फजाइल इसी बात में मौजूद है। मौला कहेंगे देखो ये कौन है, हम कौन है, हमें जान लो, हमें पहचान लो। हमारे जसाद मुतार, हमारे वजूद मसूद की वजह से आज तक ये कायनात रुके हुए थे। मौला कहेंगे कि मरियम का पिसर है ये, तवज्जो, मरियम का पिसर है ये, मैं इब्ने अली हूँ। मरियम के पिसर है ये, मैं इब्ने वली हूँ। ये सिर्फ वली थे, मैं वली इब्ने वली हूँ। ये सिर्फ वली थे, मैं वली इब्ने वली हूँ। ईसा में और मुझ में यही फर्क बड़ा है। ये नादे अली पढ़ते थे, मैं नादे अली हूँ। ये तो संभाला लोग और तेरे लिए है, ये तो संभाला लोग और तेरे लिए है। ये खल्क कायनात का घर तेरे लिए है, ये खल्क कायनात का घर तेरे लिए है। नरजिस के पिसर पर्दा गैब से आइए, नरजिस के पिसर पर्दा गैब से आइए। इस दौर के यजीद का सर तेरे लिए है। नारे हैदरी, नारे सलावत। बीबियों, इमाम मुहर्रम का दिन, इस 9 मुहर्रम दिन तक बीबी को फिक्र नहीं थी, इसलिए गाजी जैसा भाई मौजूद था। मेरी बीबी रबाब का झूला अभी तक मेरे 6 महीने के हैदर कर्रार अली असगर अलैहिस्सलाम की लोरियों से झुलाया जा रहा है। आज 9 मुहर्रम में हमारे यहाँ ये मंसूब है, हमारे से ये वो गरीब हस्ती है कि जब 28 रजब को चले थे तो चंद दिन थे। जब करबला में 10 मुहर्रम को आपका सिंह 6 महीने का था, आपने सबके बनवाए। अली अकबर का चेहरा आपने, हुसैन की शुराक आपने थी, सारे कमाल आपके जिस्म में, अपने वक्त के हैदर करार आप भी हैं। बीवियों, जब 7 मुहर्रम का पानी बंद हो गया, सबसे ज्यादा प्यास बच्चों को लगती है। आज दिल खोल के मातम कीजिएगा। तो हमारी बीवी रबाब आई, मैं जानती हूँ गर्मी लग रही है, लेकिन मातम कीजिएगा। अगले साल क्या पता हम से कौन जिंदा रहे, जो जिंदा रहेगा वो मातम करेगा। बीवियों, दिल खोल के आज कोई रोएगा तो उसको कोई ताजियाने नहीं मारेगा। आज कोई रोएगा तो उसे कोई झटका देने वाला मौजूद नहीं होगा। आज कोई रोएगा तो बढ़कर कोई नहीं कहेगा जो अपने भाई को बुला कर ले गया। बीवियों, 3 हस्तियां ऐसी हैं जिनकी नस्ल करबला में खत्म हो गई। एक है मौला मुस्लिम, दूसरी है बीबी ज़ैनब, तीसरी है बीबी रबाब। 6 महीने का बच्चा है आपका, जिसका नाम असगर है, शहजादा असगर। मेरे मौला की जबान इतनी सूख गई थी कि लब खुलते थे तो बंद नहीं होते थे, बंद होते थे तो खुलते नहीं थे। लब खुलते थे तो बंद नहीं होते थे, बंद होते थे तो खुलते नहीं थे। क्या गुर्बत का वक्त था, आपकी गोदों में बच्चे बैठे हैं। अभी आपका बच्चा आपसे पानी मांगने लगे तो माँ पानी नहीं पिएगी, बच्चे को दे देगी। जरा सोचिएगा बीबी रबाब के दिल का क्या मंजूरी होगी जब 6 महीने का अंदर सामने मौजूद है, लब खुश्क हो गए हैं। बीबी सकीना आके कहती है अम्मा, अम्मा चचा अब्बास से कहिए पानी लेकर आ जाए।
अम्मा मेरा भैया प्यास से मर जाएगा। अम्मा अम्मा मैं भैया को लोरी देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भैया पर प्यास की शिद्दत का इतना असर है कि मेरा भैया मुझ में ताकत नहीं है मैं बयान करूं। अब हुसैन का इस्तेग़ासा बुलंद हुआ, हल मिन नासिर यंसुरना। जब अकेले हो गए मेरे मौला, गरीब हो गए मेरे मौला, कोई बाकी नहीं रहा, अली अकबर गए, मौला की आंखों का नूर चला गया, गाजी अलमदार गए, मेरे मौला की कमर टूट गई। अब मेरे मौला कहते हैं अम्मा की अजीब रिसालत मिला, आज गुर्बत में कोई साथ देने वाला नहीं है, मातम कीजिएगा। बीबी हर कोई नहीं रोता, रोता वही है जिसके दिल पर चोट लगती है। आपके मोहल्ले में अभी 2 दिन पहले या 3 दिन किसी के यहाँ औलाद होकर मरी, जरा उस माँ से जाकर पूछो उस माँ की क्या हालत हुई जिसकी औलाद उस दुनिया से गई। हर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, सिर्फ वही अंदाजा लगा सकता है जिसने अपनी औलाद को खोया हो, वही माँ अंदाजा लगा सकती है। और जैसे इस्तेग़ासा बुलंद हुआ, हल मिन नासिर यंसुरना, बीवी रवा दौड़ कर गई, आहा गजब हो गया। अली असगर ने अपने आप को झंडे से गिरा दिया है, मातम कीजिएगा। सबीना हाय प्यार। माला कहते बाबा जाओ मेरे शहजादे को लेकर आओ। अब जो शहजादा आया मेरे माला कहते हैं सकीना तेरे भाई को लेकर जाता हूँ। यहाँ पर जितनी भी बहनें बैठी हैं उनसे मेरा एक सवाल है, हर भाई को बहन से प्यार होता है और बहन को भाई से प्यार होता है। बहनें अपने भाई को मुसीबत नहीं देख सकती, खुदा न करे कोई ऐसी बहन बैठी जिसने अपने भाई को मारा हो, उसके दिल से पूछे भाई का नाम होना क्या होता है। बीबी सलीना ने कहा बाबा आप लेकर जा रहे हो, भैया को पानी पिला कर ले आना, मैं प्यासी भी रह जाऊंगी तो कोई गम नहीं है। अब बीबी रवाब ने बढ़कर कहा मेरा शहजादा लेकर जा रहे हैं तो इस तरह से लेकर जाइए आखिरी मर्तबा ये मुझे देखता रहे, मैं इसे देखता रहूं। मातम कीजिएगा बीवियों, कोई आके ताज़ियात नहीं लगाएगा। और मौला असगर ने अपनी गोद को मोड़ दिया। किसकी गोद में? मौला हुसैन की गोद है, हुसैन बेटा है अली, लेकर चले हुसैन। अब चेहरा किधर है? मेरी तरफ देखेगा, जिसे मैंने नहीं आया तब मेरी तरफ देखेगा। मौला असगर को लेकर चले मौला असगर का चेहरा है अम्मा की तरफ, जा रहे हैं रंग की तरफ। अब जैसे जैसे लेकर चले वैसे वैसे लगा आपने कहा ज़ैनब गवारे ना औलाद हुसैन पर निछावर कर दी। अब गरीब मजलूम ने करबला लेकर गए, सामने गए हम थक जाते, जरा मंजिल क्या है तसव्वुर कीजिएगा। जिसे रोना है उसका अपना मुकद्दर अपने ईमान को उठाने। गरीब मजलूम में करबला आए मैदान में, आने के बाद कहाँ है ज़ालिमों, जिसके दिल में रहम होता है वो किसी के जानवरों को भी प्यासा नहीं देख सकता। मौला हुसैन ने हमें सलाम भेजा, 3 मकाम पर सलाम भेजा है। पहला मकाम ये भी है, मेरे मौला ने कहा ऐ मेरे शिव मेरा सलाम हो आप पर, बस तुम मेरी गुर्बत को याद रखना कि मेरा बेटा मेरे हाथों पर तड़प रहा था, उनके जानवर पानी पी रहे थे। मेरे मौला ने मारकर कहा ज़ालिमों तुम्हारे जानवर पानी पी रहे हैं, मेरे आसवर इतना प्यासा है, अगर ये बोल दे तो शोले आ जाए। ना तुम ये असगर के भाई का मंदिर कौन असगर? हर कोई अपने आप में असगर है, हर कोई अपने आप में मोहम्मद है, हर कोई अपने आप में अली है।
शर्त रखी? क्या शर्त रखी हुसैन? आप अपने बच्चे के बहाने से पानी पीना चाहते हैं कि बिना तो कीजिएगा? क्या गुर्बत है सादा हाथ पर? ए जान न ठल्ला की उतर जाएगी ज़ैनब, ए जान न ठल्ला की उतर जाएगी ज़ैनब, मेरी बीवी का कस्मा हो तो कुछ बाकी ना रहेगा। माफ़ी कीजिए मैं सोचकर। अब जब हुसैन ने सुना कहा मेरे बच्चा प्यासा है, कहा अपने बच्चे से कहो खुद पानी मांगे। आलम इंसानियत का सबसे गरीब वक्त है, खुद पानी मांगे। हुसैन गरीब मजलूम करबला आपने पड़े, मेरे मौला को जमीन पर रखा। अब चलती हुई जमीन है, गरीब ने उठाया, फिर पीछे आए, कहा सुनो आपका जिस्म नाजुक है, जमीन ज्यादा गर्म है, हिलाने वाले फिर रखा। रोकर कहते हैं सकीना माफ कर देना, भैया चलती हुई भैया चलती हुई को आप पर निकालो। सकीना माफ कर देगा, भैया चलती हुई को आप पर निकाल रहा हूँ। अभी भी हो जैसे ही मौला ने हाथ पर लिटाया, मौला ने मुस्कुराना शुरू किया, आशिकिया ने हंसना शुरू किया, मौला ने रोना शुरू किया। अब जैसे ही कुछ ने रोना शुरू किया, उसकी बात से फौरन उन्होंने साथ ने कहा फरमाना जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो हाय जरूर कर दीजिएगा, मुझे में ताकत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिएगा वो माँ भी मर जाती है जिसकी औलाद मर जाती है, वो बहन जिंदा डरपोर हो जाती है जिसका भाई मर जाए। अल्लाह न करे इसका भाई ऐसा मारा जाए जैसे बीबी सकीना का भाई मारा गया। इधर मौला मुस्कुराए, आशिकिया रोने लगे। और मेरे साथ ने कहा हुर्मिला कहाँ है? हुर्मिला को बुला कर लाओ, मेरे सामने बहुत से बच्चे मौजूद हैं, तसव्वुर कीजिएगा। हुर्मिला आगे आया, अब जो तीर को कमान में छोड़ा कौन सा तीर है जो जानवरों पर चलाया जाता है? अब जो तीर को कमान में छोड़ा एक काले बुर्के वाली बीवी कहती है हुर्मिला हया कर, तेरे भी औलाद होगी, हया कर, मेरा 6 महीने का असर है, तीर ना चला। जनाब मुख्तार जब दरबार में घूमना शुरू किया, हुर्मिला तुझे तीर चलाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? कहता है मुख्तार जब मैं तीर चला रहा था हम मर्दों न जाए रोते रोते, हम मर्दों न जाए रोते रोते, बीवी रवाब को पूछा लीजिएगा उनके शहजादे का। तो हुर्मिला ने कहा था मुख्तार जैसे ही मैंने तीर को छोड़ा एक काले बुर्के वाली बीवी ने कहा हुर्मिला रुक जा, ये अजगर मारा जाएगा, सकीना जिंदा न रहेगी, हुसैन की आखिरी निशानी है, रवाब की गोद चढ़ जाएगी, मेरे भी बच्चे होंगे। मैंने तीर चलाया, हुसैन के बाजू से बेबस होकर अली असगर के गले में लगा, काले बुर्के वाली बीबी की सगाई। हुर्मिला कसम हो गया, हाय मेरा 6 महीने का चलती हुई रे, हाय मेरा गरीब बेटा जंगल में वीरान हो गया, सदा की मुर्गा इन्ना लिल्लाह है। मैं लिखना चाहूँ एक जुमला और पढ़ूंगी, गज़ल जुमला राम के मातम कीजिएगा। जब चौथे इमाम दरबार में आए थे, चौथे इमाम को मिलाकर यजीद ने कहा था मौला दौलत ले लीजिए, शोहरत ले लीजिए, इक़्तिदार ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। मौला ने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यजीद ने कहा मौला मैं आपको रिहाई दे रहा हूँ, क्या चाहिए? तो मौला ने रोकर जुमला कहा था जितने भी यहाँ पर सैलानियाँ बैठी हैं हाय जरूर कर दीजिएगा, आपकी सादात की बत्ती है। मौला ने खून के आंसू रोकर कहा था और यजीद